ये राह हिदायत बयां है, ये राह। मज़ीद नए बयानात सुनने के लिए चैनल राह हिदायत बयान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो 6 सिफात में से 5वीं सिफत है इखलास नियत। इखलास नियत का मकसद ये है कि हम हर नेक अमल को, हर नेक काम को खालिस अल्लाह के लिए करने वाले बन जाए। एक तो मकसद ये है। दूसरे अल्फाजों में हम अल्लाह के हुक्म को सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए करने वाले बन जाए। ये इखलास नियत का मकसद है। အရင်6ရမှာနံပါတ်5အရေးချင်းရတော့ इखलास नियत ဖြစ် इखलास नियत ရဲ့ मकसद တစ်ခုကနံပါတ်1 मकसद ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေအားလုံး नेक လုပ်ငန်းတွေကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်တွေအားလုံးကိုဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့ရီဇာအတွက်အလ္လာဟ်ကျင့်တဲ့နှစ်သက်ဖို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ नियत ဆန္ဒနဲ့ပဲလုပ်ရမှာဖြစ်အဲ့ဒါက मकसद တစ်ခုဖြစ်ဒုတိယ मकसद ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့အမိန့်တော်ဟူသည်ကိုအကောင်တွေပေါ်တဲ့နေရာမှာအလ္လာဟ်ရဲ့ကျင့်တဲ့နှစ်သက်မှုအတွက်ပဲလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ नियत ဆန္ဒထားခြင်းဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့အမိန့်တော်ဘာတွေပဲကျွန်တော်တို့အကောင်တွေပေါ်သည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ရဲ့အလ္လာဟ်အမိန့်တော်တွေအကောင်တွေပေါ်ခြင်းကအလ္လာဟ်နှစ်သက်ဖို့ဆိုတဲ့ नियत နဲ့ပဲလုပ်ရမှာဖြစ်တယ် जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हर अमल की कबूलियत के लिए 3 चीज़ें शर्त है। एक ईमान, दूसरा इल्म और तीसरा इखलास। ये 3 चीज़ें हर अमल की कबूलियत के लिए शर्त है। အဲ့ဒါကြောင့်အမလ်ဘယ်အမလ်ကိုပဲလုပ်သည်ဖြစ်စေအဲ့ဒီအမလ်ကအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့ကဘူလီယတ်ရဲ့အဆင့်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ရှရတ် 3 ခုသူရဲ့စီကံချက် 3 ခုရှိပါတယ်နံပါတ် 1 စီကံချက်ကတော့ဗာလဲအီမန်ယကင်ဖြစ်တယ်နံပါတ် 2 စီကံချက်ကတော့ इखलास ဖြစ် ईमान, इल्म और इखलास। နံပါတ် 1 ကအီမန်ဖြစ်တယ်နံပါတ် 2 ကတော့အီလင်ဖြစ်တယ်သူမှာသာသနာအသိပညာရှိရမယ်နံပါတ် 3 က इखलास ဖြစ်အီမန်ရဲ့ इखलास ရဲ့အီမန်ရဲ့အီလင်ရဲ့ इखलास ရဲ့ဒီအချက် 3 ချက်ကရှရတ်ဖြစ် इखलास, हकीकत वाला इखलास हमारी ज़िंदगी में आ जाए, इसके लिए 3 लाइन की मेहनत है। नंबर 1, तालीम के हलक़ों में बैठ करके इखलास नियत की फ़दाइल को खूब सुनना और उम्मत में चल फिर करके अम्बिया सहाबा वाले इखलास की दावत देना। အဲ့ဒါကြောင့်စစ်မှန်တဲ့ इखलास ရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က line 3 line နဲ့ मेहनत လုပ်ရမှာကြိုးပမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် 1 ကြိုးပမ်းမှုကတော့ကျွန်တော်တို့က फज़ाइल လေးထိုင်ဝိုင်းနေမှာထိုင်ပြီးတော့ इखलास နဲ့ပတ်သက်တဲ့ hadith တော်တွေကိုအာယုံစုတဲ့အတွက်နားထောင်မယ် इखलास နဲ့ပတ်သက်တဲ့ hadith တော်တွေကိုသိကြမှတ်သားပြီးတဲ့နောက်မှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်နဲ့ဆာဘာတာဝကာကြီးရဲ့ इखलास ကဘယ်လိုရှိပါလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဥမ္မတ်ရဲ့တွင်ထဲမှာလက်ပတ်ပြီးတော့ဒါဝတ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အီမန်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ इखलास ကိုရယူရမှာဖြစ်တယ် तो सलीम भाई इनको बोलो, ठीक है, मतलब गैस ख़त्म हो गई ना। तो अब इखलास में दावत क्या देना है? इखलास की इतनी अहमियत है, अल्लाह अकबर कबीरा। हदीस पाक के मफ़हूम में आता है कि बड़े बड़े आमाल करने के बावजूद भी इंसान जहन्नम में जाएगा और रिवायत का मफ़हूम ये है कि काफिरों से पहले भी जहन्नम में जाएगा, सिर्फ़ इखलास की कमी और नीयत के बिगाड़ के वजह से। အဲ့တော့ इखलास နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဝတ်ပေးဖို့အတွက်ဆိုတာဘာတွေကိုဒါဝတ်ပေးရမလဲ इखलास နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်အဟမီယတ်ရှိတယ်ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် इखलास မပါဘဲနဲ့လူတစ်ယောက်ကဘယ်လောက်ပဲကြီးမားတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်ပါသည်အလွန်တရာမှပဲကြီးကျယ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေသူကလုပ်ပြီးတော့ကာဖီရ်မူရှရစ်တွေတဲ့အရင်အဲ့ဒီသူကဂျဟန္နမ်မှာကျသွားလိမ့်ဘာကြောင့်လဲသူရဲ့ इखलास ကမှားယွင်းနေတယ်သူရဲ့ नियत ကမှားယွင်းနေတယ် नियत ကအလ္လာဟ်အတွက်မဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီသူဟာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်ပြီးတော့လေအဲ့ဒီသူကကာဖီရ်မူရှရစ်တွေတဲ့အရင်ဂျဟန္နမ်ကိုကျမဲ့သူဖြစ်တယ် मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का 3 ज़िंदगी के आखिरी 3 बयानात हैं, किताब छपी हुई है। उन आखिरी 3 बयानात में से हज़रत ने ये रावण में यानी पाकिस्तान के सफ़र में 3 आखिरी बयानात किए। उनमें से एक बयान के अंदर में हज़रत ने एकदम इखलास को खोल कर बयान किया और फरमाया
अगर नफ्स के ख़िलाफ़ चलना नहीं आया, अगर नफ्स के ख़िलाफ़ चलना नहीं आया, यानी अल्लाह की रज़ा के अलावा किसी भी नीयत का होना, यह नफ्स का दखल हो गया। अगर इखलास नहीं तो नफ्स है, पर मैं अगर नफ्स के ख़िलाफ़ चलना नहीं आया तो जो चाहे रास्ता इख्तियार कर ले, इंसान जहन्नम में जाएगा। हज़रत ने खुलासा किया, तबलीग करेगा तब भी जहन्नम में जाएगा, इल्म पढ़ाएगा तब भी जहन्नम में जाएगा, ज़िक्र करेगा तब भी जहन्नम में जाएगा। जो चाहे रास्ता इख्तियार कर ले, अगर नफ्स के ख़िलाफ़ चलने नहीं आया तो फरमाया जहन्नम में जाएगा। ये फिर उसको रिवायत मुंतखब हदीस में वो रिवायत है बुखारी शरीफ की, उससे साबित किया है। हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह तकिंजी मक्वेलू मीजे नींगे खेमा बयानात तोगु लोगे अलो में अजीजी रे बयानात फिदे ऐ मानौसो प्रोगे रे जगह सोलुशन रायवेन पाकिस्तान मरकज रायवेन मा प्रोगे रे जगह फिदे हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब ने बलाउडी खुलासा बलाउडी पुम लेले इखलास पे पते ब्रो प्रोलाई ले सोलुशन लूटियो का तू ये नफ्स सच में तू अमल मलो बेने नफ्स अच्छाई लो में अल्लाह रिज़ाए अपोमा तू मशी बेने तू ये नफ्स अच्छाई तू अमल तकू को लो में सोलुशन एरी दुआ जहन्नम को बे तो मा फिदे चाहे तू तबलीग के अल्लाह को लो दी बे फिबादी तू बलो कौम को तो बे लो दी फिबादी तू ये नफ्स अच्छाई तू लो में अल्लाह रिज़ा बोमा तू मलो बुसोई एरी दुआ जहन्नम को बे चा में सुबिरो मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह तकिंजी का अल्लाह खुलासा लो डारे अरा ने पते बिरो मुतकाब हदीस में बुखारी ये हदीस को हज़रत जी ने अरा साबिक लो डार ना ने बाजो जहन्नम को तोमले सूरा कोई लेने प्यो रे तू बुखारी हदीस ने तू अठाव डाने प्यारे दी हदीस या अरी दुआ जहन्नम भी फिर किसी ने पूछा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, ए अबू हुरैरा हमें वो हदीस सुनाओ जो तुमने अल्लाह के नबी से डायरेक्ट सुनी हो, अच्छी तरह उसे याद किया हो, महफूज किया हो, हमें वो हदीस सुनाओ। फरमाते अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि मैं तुम्हें वो हदीस ज़रूर सुनाऊँगा। और वो हदीस शुरू करते करते वो बेहोश होकर गिर जाते और बहुत देर के बाद होश आता और फरमाते हाँ मैं तुम्हें वो हदीस ज़रूर सुनाऊँगा। फिर हदीस शुरू करते और बेहोश हो जाते, 3 मरतबा ऐसा होता। फिर फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कल क़यामत के दिन बुलाया जाएगा, फरमाया अल्लाह के रास्ते में फिरने वालों को और शहीद होने वालों को, और पूरी हदीस बयान की कि उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा उसके नीयत की ख़राबी की वजह से। फिर इल्म पढ़ा, कुरान पढ़ाया उसको बुलाया जाएगा और उसकी भी नीयत की ख़राबी की वजह से उसको भी जहन्नम में डाला जाएगा। और तीसरा बुलाया जाएगा मालदार को जिसने अल्लाह के नाम पे माल खर्च किया, लेकिन उसकी नीयत ये थी कि लोग मुझे सखी कहे, लोग मुझे फयाज कहे। ये तीनों अल्लाह के काम में लगने वाले हैं। फरमाया हदीस के मफ़हूम में कि इन तीनों को काफिरों से पहले जहन्नम में डाला जाएगा। ये कहेंगे ए अल्लाह हमारे साथ ऐसा मामला क्यों, हमें काफिरों से पहले जहन्नम में क्यों डाला गया। अल्लाह फरमाएंगे जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं होते। वो जो काफिर मुशरिक है उन्होंने तो मुझे जाना ही नहीं, लेकिन तुम तो मुझे जानते थे, मेरा इल्म तुम्हारे बारे में था, उसके बावजूद तुमने नफ्स के लिए अमल किया। अगर बुको को चाहा टकागा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तकिंजी को लायो मीमिया ने शौ डारे ओ अबू हुरैरा अते यातुलुजी तमन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह निका जो निगेरे पोगो पिदे तमन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम्या दाराई कम्या नाने सस जागेरे हदीस को जनो अपजा कम्या नाने सस तेजा जागेरे हदीस पे अदे अबू हुरैरा तकिंगा अमेशी रे कौमी गा नाने गा सस जागेरे हदीस को एमटामा वे अजेजी रे हदीस दबो मेरे गा सिम प्या में लुक तो बिरो हदीस को तू सा प्योलाई दे तू दरी में नोटो द्वारा तो रोचदा दरी में बिरो प्या दरी जा लावे ऐजे मा तू प्या प्यो रे कौमी तमनो में के हदीस को गा नाने सस जागेरा मेनो गा प्या में सो बिरो प्या सा प्योलाई दे हदीस तू प्या भी दरुजिया जे दरी प्या ले द्वारा दरिया चेले अलो बे फिदे तोंजे तोंगा तू दरी ले बिरो मा तू को तू मने ठई बिरो तू अमेशी रे तमनो में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमेशी रे मने भी क़यामत मा अल्लाह शिमा गा पोगो तो काफिर मुशरिक के दे जहन्नम ने मठे में नमति पोगो गारो अल्लाह ला मठो बिरो शहीद के द्वारा दु फिदे एडी शहीद या सोलुशन लूरेगा तू ये गौलो खो तति शिरे दुलु प्यो ऐ लो तू नामे चोचा जे लो तू अल्लाह ला मठो भी शहीद फिदे शहीद फिर में ले तू जहन्नम भी फिर
ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကဆိုလို့ရှိရင်အာလီပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ကုရ်အာန်ကိုသင်ပေးသိလုပ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတန်ကောင်းကောင်းနဲ့ကိရာထွက်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီသူကလည်းအလ္လာဟ်ဆုဘဟာနကကိယာမတ်မှာကာဖီတွေအရင်ဂျာဟ်နမ်မှာထဲလိုက်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအမိန့်ရှိမယ်အတင်ဟာဒုနီယာလောကကြီးမှာအတင်ကိုလူတွေကအာလီပညာရှင်ကြီးလို့အာလီမ်ကြီးလို့အကာဗရင်ကြီးလို့အခေါ်ခံရအောင်အတင်အနေနဲ့ဒီကြိုးပမ်းမှုတွေကိုလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တင်းရဲ့နေရက်ပြည့်မှားယွင်းမှုကြောင့်အတင်ကိုဂျာဟ်နမ်ထဲမှာထဲလိုက်လိမ့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းဂျာဟ်နမ်မှာထဲမယ်နံပါတ်3ပုဂ္ဂိုလ်ကဆိုလို့ရှိရင်စကီစကာဝတ်ကြီးတဲ့တထေးကြီးဖြစ်တဲ့အဲ့တထေးကြီးရဆိုလို့ရှိရင်အလွန်တရာမှပဲအလူတန်းနေရရောတဲ့သူဖြစ်တဲ့သို့တော့သူရဲ့အလူတန်းနေရရောရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲလူတွေကသူ့ကိုစကီစကာဝတ်လို့ခေါ်တကယ်အလူတန်းရရောတဲ့သူလို့ခေါ်အဲ့လိုသူဟာနာမည်ကြီးကျယ်လို့သူဟာဒီအလုပ်တွေကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ကိုလည်းအလ္လာဟ်ဆုဘဟာနကကာဖီတဲ့အရင်ဂျာဟ်နမ်ထဲမှာထည့်မယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၃လုံးကအလ္လာဟ်ကိုရှောက်မယ်ယာလာကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်ရဲ့ဒီနေ့အတွက်လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဘာကြောင့်အလ္လာဟ်ရှင်ကာဖီတဲ့ရင်ဂျာဟ်နမ်ထဲကိုထည့်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကမေးလျှောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာအလ္လာဟ်ရှင်ကပြောပြလိုက်မယ်နားလေတဲ့သူနဲ့အေလီမရှိတဲ့သူနဲ့အေလီမရှိတဲ့သူနဲ့ဟာဘလို့မှမတူနိုင်ဘူးကာဖီကတော့ငါအလ္လာဟ်ရှင်ကိုလုံးဝမသိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကာဖီရဲ့လုံရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါအလ္လာဟ်ရှင်ကစိတ်ဆိုးတော်မူတဲ့သို့တော့အတင်းတို့ကငါအလ္လာဟ်ရှင်ကိုသိတယ်အတင်းတို့မှာအေလီမ်နဲ့ရှိတယ်အေလီမ်ရှိရနဲ့ငါ့ကိုတိတိကြီးနဲ့ငါအတွက်မလုပ်ဘဲနဲ့ဒုနီယာအတွက်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်အတင်းတို့ကိုကာဖီတဲ့ရင်ဂျာဟ်နမ်ထဲမှာထည့်တယ်ဆိုပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှင်ကအပြည့်ပေးလိုက်မှာဖြစ်တယ် एक साहब ने ये हदीस जा करके अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सुनाया अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला इतना रोए इस हदीस को सुन करके कि लोगों को लगा कि इनका इंतकाल हो जाएगा इतना रोए इस हदीस को सुन करके အဲ့ဒီမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဟဇရတ်မူအာဝီယာရဒီလောတကီနီသူအမီရဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုသွားပြီးဒီဟဒီစ်ကိုသွားပြီးတော့ပြောပြတယ်ဖတ်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဟဇရတ်မူအာဝီယာရဒီလောတကီနီကအဲ့လောက်ငိုတာသူကအခုပဲအသက်ထွက်ပြီးတေတော့မဲ့အလားအဲ့ဒီဟဒီစ်ကိုကြားပြီးသူကအလုံးမဲ့ငိုကြွေးပါလေ खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमेशा हर जमात के अमीर रहते थे अल्लाह के रसूल ने इनको अमीर बनाया अबू बकर सिद्दीक ने अमीर बनाया और जहाँ जाते थे जिस तकाज़े पर मैदान फतेह हो जाता था उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बनने के बाद अमीर बनने के बाद सबसे पहला काम ये किया कि आज के बाद खालिद जमात के अमीर नहीं रहेंगे आज के बाद खालिद जमात के ज़िम्मेदार नहीं रहेंगे ये ख़बर लेकर बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए जहाँ पर जमात काम कर रही थी और उनका सर पे से इमारत का अमामा निकाल कर अबू उबैदा बिन जर्राह के सर पर इमारत का अमामा पहनाया और उनको इमारत से हटा दिया उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये मामला हो गया तो लोगों ने कहा खालिद से ये खालिद अमीरुल मोमिनीन ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया अमीरुल मोमिनीन ने तुम्हारे साथ इंसाफ का मामला नहीं किया बहुत गलत किया हज़रत खालिद ने कहा ये खालिद कल ज़िम्मेदार था शिपे सालार था कल भी अल्लाह के लिए काम कर रहा था आज सिपाही है एक आम साथी है आज भी अल्लाह के लिए काम करें हमें ओहदे से क्या मतलब हमें मकाम से क्या मतलब हमें काम तो अल्लाह के लिए करना ये सबक मिलता है सहाबा की ज़िंदगी में कि सहाबा ऐसे मुखलिस थे အဲ့တော့ဆာဘာတာဝကကြီးတွေမခလီစ်သူတို့ရဲ့အခလာကဘလောက်အစိမ့်မြင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟဇရတ်ခါလီဘင်ဝလီရဒီအလာဟ်တကီနီကိုတမန်တော်မြတ်ဆလလာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ကစစ်ပွဲတိုင်းမှာအမီရဖြစ်ခံခဲ့စစ်ပွဲတိုင်းမှာတမန်တော်မြတ်ကသူ့အမီရခံခဲ့တမန်တော်မရှိတော့တဲ့နောက်မှာလည်းဟဇရတ်အဘူဘကာဆစ်ဒီကစစ်ပွဲတိုင်းမှာသူ့ကိုပဲအမီရခံခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲသူကသူသွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာမိုက်ဒန်နေအားလုံးမှာသူကအနိုင်ရခဲ့တယ်။သူကစစ်ပွဲတိုင်းကိုအနိုင်ယူခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်။အဲ့လိုလာရင်ဟဇရတ်ဥမာရဒီရောတကီနီရဲ့ခေတ်ကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာဟဇရတ်ဘီလာလ်ကိုလွတ်လိုက်တယ်။လွတ်ပြီးတော့သူ့ကိုအမီရရဲ့ယာဒူကနေဖြုတ်ချလိုက်တယ်။အမီရရဲ့ယာဒူမှာပေးထားတဲ့အီမာမ်လူမာမခေါင်းမောင်းဖြုတ်လိုက်တယ်။အဗ်ဒူလာဘင်ဂျာရာဟ်ရဒီရောတကီနီကိုအဲ့ခေါင်းမောင်းကိုပြောပြီးတော့စောင်းပေးလိုက်တယ်။သူ့အမေရိကန်နေဖြုတ်ချတယ်။နောက်ဆဟာဘာတော်အဗ်ဒူလာဘင်ဂျာရာကိုအမေရိကန်လိုက်တယ်။အဲ့လိုဖြစ်ပြီးသွားတဲ့ချိန်မှာဂျမာတ်ကစာတီတွေကပြောတယ်အမီရုလ်မူမီနီယာခမည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတရားဆက်ဆံလိုက်တယ်ခမည်းဘက်မှာသူကကောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ဒီဟာကိုလုပ်တာမဟုတ်ဘူးခမည်းကိုတော်တော်ပဲနှိမ့်ချလိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပြီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခမည်းဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲအဲ့ဒီမှာဇက်ခါလီဘင်ဝလီရဲတုန်းတကင်းပြောလေဟိုဟိုငါအနေနဲ့ကတမန်တော်မြတ်ရဲ့ခေတ်တုန်းကခေတ်တိုင်းမှာငါအဘီလုပ်ခဲ့တဲ့ဂျီဟတ်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဒါတွေအားလုံးကအလ္လာဟ်အတွက်ပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့အမီရမဖြစ်တော့ဘူးဂျမာသားဖြစ်သွားပြီဂျမာသားဖြစ်တဲ့ချိန်မှာလည်းငါအလ္လာဟ်အတွက်ပဲတိုက်ပွဲဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမီရဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းဒီဘာမှဒါပြဿနာမဟုတ်ဘူးအဓိကကအလ္လာဟ်အတွက်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အမီရနေရာကနေလည်းလုပ်မယ်
ဂျမာတာနေရာကနေလည်းလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ခါလေးဘင်ဝလီကပြန်ဖြေလိုက်တယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုကြည့်ကြရင်ဗာသိရလဲဇာဘာတဝကကြီးတဲ့ ikhlas ကအလ္လာဟ်အတွက်ပဲလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ယာဒူးအတွက်ဘယ်လိုကိစ္စနဲ့မှမပတ်သက်ဇာဘာရဲ့ ikhlas ကအဲ့လိုအစစ်အမြင့်ကြီးဖြစ်ပါတယ် हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दुश्मन से मुकाबला हुआ अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस दुश्मन को गिरा दिए उसके सीने पे चढ़ दिए और करीब था कि उसको कत्ल कर देते हैं उसने थूक दिया अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर अली रज़ी अल्लाह अन्हु फ़ौरन उसके सीने से उतर गए और दूर हो गए वो हैरान हो गया कि यार तुमको तो और गुस्सा आना चाहिए तुम्हें तो और ज़ोर से मुझे कत्ल करना चाहिए तुम मुझे छोड़ क्यों दिए अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि मैं तुझे अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के वास्ते कत्ल कर रहा था लेकिन जब तूने थूका मेरे चेहरे के ऊपर तो मेरे नफ्स का दखल आ गया मुझे गुस्सा आ गया मैं काम अल्लाह के लिए करता हूँ अपने नफ्स के लिए नहीं करता हूँ लिहाजा मैंने उतर करके अपनी नीयत को सही की अपनी नीयत को दुरुस्त किया और फिर उसको कहा कि वापस से मुकाबला करेंगे हज़रात सहाबा ऐसे अपनी नीयतों की हिफाजत करते थे मेरे भाई အဲ့လိုပဲသူတို့ဒီမောင်တို့ကဟဇရတ်အလီရဒီလောတခင်ကြီးဟာကာဖီတယောက်နဲ့သူကမကာဘလာလုပ်ရင်နဲ့ဓာရေးရှင်ခုတ်ရင်နဲ့သူကအနိုင်ရပါကာဖီရဲ့ဂျဘဘွားနဲ့တိုက်ထိုင်လိုက်ပြီကာဖီရဲ့ဂျဘဘမှာခွာပြီးတော့သူကကာဖီကိုတတ်မဲ့ဆဲတဲ့မှာအဲ့ဒီကာဖီကဟဇရတ်အလီရဲ့မျက်နှာကိုဇရွေးနဲ့ထွေးလိုက်တယ်အဲ့လိုထွေးခံလိုက်ရတဲ့ချိန်မှာဟဇရတ်အလီကချက်ချင်းသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေထားလိုက်တယ်သူ့ရဲ့ခွာထားတဲ့နေရာကနေထားပြီးတော့မတက်ရက်လိုက်အဲ့ဒီချိန်မှာဒီကာဖီကကြောင်သွားတယ်ခင်ဗျားဒီလောက်ကျွန်တော်ဇရွေးနဲ့ထွေးလိုက်တာစိတ်ဆိုးပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဆိုးဒေါသနဲ့ခင်ဗျားကျွန်တော်တတ်ရမယ်စားဘာကြောင့်လွတ်လိုက်တာအိုးဟိုဟဇရတ်အလီကအမေးရှိတယ်ဟိုမိတ်ဆွေအေးကာဖီမတမမေးကငါတက်ဖြတ်တာဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်အတွက်ဖြစ်အခုမင်းငါမျက်နှာကိုဇရွေးထွေးလိုက်တဲ့အတွက်ငါရဲ့စိတ်ထဲမှာဒေါသဆိုတာပါလာပြီငါ့ကိုဇရွေးထွေးလိုက်လို့တတ်လိုက်တဲ့အဖြစ်မျိုးဖြစ်သွားမှဆိုလို့ငါမင်းကိုလွတ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့မင်းနဲ့ငါနဲ့အခုပြန်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့ရှင်ပြန်တိုက်ခိုက်မယ်ဒီဟဇရတ်အလီကသူ့အဲ့လိုအမေးရှိတယ်ဇာဘာရဲ့ ikhlas ကပါလေအလ္လာဟ်အတွက်ပဲဖြစ်တယ်ဘယ်အကြောင်းအရာနဲ့မှမဆက်ဆက် मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़े अकाबरीन में गुजरे हैं बड़ा यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ पूरी ज़िंदगी भर रहे मुफ्ती साहब को हज़रत ने अजमेर भेजा काम करने के लिए उस वक़्त में जहाँ अजमेर बहुत मामला ख़राब बिदात का गढ़ बिदात का मुफ्ती साहब ने कहा कि जब तक वहाँ पर काम खड़ा ना हो जाए तब तक आपको वहाँ से वापस नहीं आना काम खड़ा कर कर आना और अजमेर जाना ये बहुत यानी अपनी मौत को दावत देना है बहुत मुजाहिदा बहुत मुखालिफत तो मुफ्ती साहब को हज़रत ने कहा कि आपको वहाँ जाना है काम खड़ा करके वापस आना है उससे पहले आना नहीं चाहे 4 महीना लगे 6 महीना लगे अल्लाह की शान मुफ्ती साहब गए मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह और वहाँ जा कर के अल्लाह के फजल से काम अल्लाह ने खड़ा कर दिया कुछ शक्ल बना दी और वापस निज़ामुद्दीन आए और दिल में ये बात थी कि यार अल्लाह ने काम ले लिया है हज़रत को कारगुजारी सुनाऊंगा हज़रत मुझको बुलाकर पूछेंगे और हज़रत मुझे बहुत शाबाशी देंगे ये दिल में ख़याल कि मैं काम कर कर आया हूँ और हज़रत मुझे मुसाफ़ा करेंगे मुझसे गले मिलेंगे मौलाना यूसुफ साहब और मेरी तारीफ़ करेंगे मुझ पर हिम्मत दिलाएंगे ये सोच करके फरमाने लगे मुफ्ती साहब में निज़ामुद्दीन आया तो रवानगी की बात चल रही थी और मुसाफ़ा चल रहा था मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह बयान कर रहे थे रवानगी की हिदायत तो मुफ्ती साहब ने कहा कि मैं भी मुसाफ़े की लाइन में लग जाता हूँ अच्छा मौका है हज़रत मुझे पकड़ लेंगे और यहीं से मैं कारगुजारी हज़रत मुझसे लेंगे मुफ्ती साहब कहने लगे मैं मुसाफ़ा की लाइन में गया और जैसा मुसाफ़ा करके सबको गुजार रहे थे मुझे भी मुसाफ़ा करके आगे बढ़ा दिया गुजार दिया तो कहने लगे मेरे दिल में चोट लगी कि तकादा आता है तो हमको बुलाते हैं हमें भेजते हैं और तकादा पूरा हो जाता है तो हमें पूछते भी नहीं हमें जो है शाबाशी भी नहीं देते मुफ्ती साहब ने कहा कि यहाँ तो अब तुम्हें कोई पूछ नहीं रहा है यहाँ तो अब तुम्हें कोई भाव नहीं दे रहा कोई अहमियत नहीं दे रहा है लिहाजा चलो बिस्तर बांधो अपने घर पे जाएंगे अपने बीवी बच्चों के साथ रहेंगे हमारे तो यहाँ कोई अहमियत ही नहीं है ये कह कर के अपना बिस्तर बांधा गठरी बांधी और मुफ्ती साहब बाहर निकल गए और बस स्टॉप पर खड़े इंतज़ार कर रहे बस का अपने वतन जाने के लिए बस के आने में ताख़िर हो गई मुफ्ती साहब खड़े खड़े इंतज़ार करते रहे अचानक से अल्लाह ने दिल में बात डाली कि ज़ैनुल आबिदीन तो काम हज़रत के लिए कर रहा था कि अल्लाह के लिए कर रहा था तो काम किसके लिए कर रहा था
हजरत से तुझे देना है अजर और तारीफ या अल्लाह से लेना है? फ़ौरन तौबा की और कहा अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, मैं तो काम तेरे लिए कर रहा था। फ़ौरन तौबा की, नीयत सही की और वापस निज़ामुद्दीन है। जैसे निज़ामुद्दीन के सीढ़ी पर चढ़े, हज़रत मौलाना साहब ने इस्तकबाल किया, हाथ पकड़ लिया, गले मिले और वहीं बैठ कर के पूरी कारगुजारी लिए। और आप दिन बैठो बैठो, सुनाओ क्या काम कर कर आए। पर मैं इखलास में गड़बड़ आई, वहाँ पर पूछा नहीं गया। जहाँ इखलास नीयत ठीक कर ली, अल्लाह ने फ़ौरन हज़रत को काम में लगा। इसलिए इस काम के अंदर में बहुत ज़्यादा नीयतों का दखल है, बहुत ज़्यादा नीयतों को सही करने की ज़रूरत है। Ayo betul di mana tu Haji mana je. बोलिए हसन, बाटला आ गया गैस? आया? फ़ोन आ रहा था, फ़ोन आ रहा, आ जाओ, आप शुरू करो। Mana Yusuf Tekinia, Mufti Zainul Abidin साहब को अजमीर को ताबीरो अलोक टू दामुद पे अलोक साबुद पे लोलाइट ऐसे जमा अजमीर का सोल्यूशन बिदात ने पिटने नहीं रहनी आप दी कबर की सारी दी तुरोज़ी की सारी बिदात की दी दामुदा रहनी आप तनिया भी जो में सोल्यूशन आई नहीं आवा अजमीर में अलोक तो साबुद दावत अलोक साबुद तबलीग अलोक साबुद सुरा बहुत ये तकादा लूरिया तपलाई में ऐसे माशी अलोक तुरोज़ी नहीं है लोगानी रहमा अलोक लूरिया से यो को बा लौड़ा नीचे में तबलीग के बारे में दूमा लखा वो मशी तो आई तकादा हो चीज़ी में ज़रूरत तो वो यो द्वारे चेमा अल्लाह शिमे के इतनारों ने यह नींगे चाला रहे चेमा अल्लाह का असाफ योलो या वारे मकामी अल्लाह के बारे पौबा उला भी सोरो तू ने अल्लाह को अल्लाह सालो या वावी अल्लाह टू डाउनो या भी सोरो तू निज़ामुद्दीन प्याना तलालों ले मुद्दे जनो अभी तक बात भी लाले हाँ नहीं ना कुल अल्लाह साला इधर ट्वे अज़े जी मोना जिसम का रोगा उतरो बे चीचू ले में गाँव शाबाश को प्योले में तू आदि अक्वी ने प्योवर तू अपना लाल निज़ामुद्दीन को याद है मंडा में रवांगी हिदायत पी लो मना इसुरत किनिया अल्लाह ने मरतबा में जमाती ने आलू ने मुसाफा लो नहीं रे मुलाकात लो नहीं रे तूले मुलाकात ये लाइन में वो भी टांसी लाई दे टांसी भी रो तू सेंदार है आलू तो आई मुलाकात लो में सोल्यूशन गाले यो नो गाँव पीड़ा ने मना इसुरत का गाँव बीमा यक खाई लाई में पी गाँव एक कारगुजारी री नाट होने में आलू में सही ढंग में ट्वेनी ऐने तूए मुलाकात लो ने चीमा मुलाकात लो भी रोले अच्छा दूरी कह दो बे तू ले अच्छी उबे सत पावो लुक पी लाई तू बाकार गुजारी माले में भी बामा ले तू जना बामा ले ये यो बच्चा आना मोना इसरत की मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन का बाले हाँ का दलाउ तो आबरो अटैक को पढ़ाना बैठा बने का तो आई मेहनत दौला रे मोना इसरत का हजरे जी आ गाँव बामा मेरे भी गाँव ना हो बच्ची तो भी को दुनिया साबी का डी लोग मलोग दो गाँव भी ताज़ू ने वे का नीलाई दो में गाँव डी भी दुनिया लोग डी लोग यारे न्यायशी रे गाँव मुफ्ती दबाव से दे सो भी रो जिस तरह रे वाले आलो ए लेने वाले ले भी रो तो कागे गुठत वाले कागे यो वाले चीमा कामला दी रो तू कना काय उठाई सौ नहीं ने अल्लाह बका नहीं रो तू लोग नारे में जगाट तू के भी लाई दे ऐ जगह वाले ए मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन मैं हजरे जी मौना यूसुफ ने दी लोग नहीं रहा अल्लाह पे लोग नहीं रहा ऐ जगह तू से नारे में जाओ रे चीमा हाँ का तो बावा भी हाँ अल्लाह पे लोहा में सा हजरे जी ये शाबाश में प्योरे बमांगा बाबा से सोजा मलो अल्लाह चेने पियो गा तो मावा भी तू तौबा लो भी चचिन तो निज़ामुद्दीन को प्यान जाओ निज़ामुद्दीन ने लिखा वो टटा ने मोना यूसुफ तकिनिया तू तकारे कोई वाला ने खो भी रो आना का लो दे मुलाकात लो दे फिर अरे माँ बैठा ही तू ये कारगुजारी नहीं पर नमा तू ये इखलास का माँ नहीं रे ऐ जी माँ मोना यूसुफ का बाबा तू वो ले मची तू ये इखलास मानवा रहे जी माँ मोना यूसुफ का तू कोई भी डिसाइड भी रो तू तारीफ लोग दे तू शाबाश भी दे प्योर तो वो का बाले ये लोग आने में इखलास का इब्राहिम में ये चीज़ इखलास में पाबूस हुए बल्लौ चीज़ कह रहे अमल लोग के दिफी दी मौत ने तो अभी रो तकादा था अभी चुबा कह रहे चुबा मुझे बादी आई चुबा मुझे आलो बोले अल्लाह का लखा मामू हज़रत जी दावत बरकातुहू ने फरमाया एक मौके पर अगर किसी साथी के दिल में ये बात है कि मुझसे राय क्यों नहीं लेते मशवरे में, मुझे ज़िम्मेदार क्यों नहीं बनाते और मेरा बयान क्यों नहीं तय करते, अगर किसी साथी के दिल में ये मशवरे के अंदर काम के अंदर ये बात है, फरमाया वो साथी इस काम में मुखलिस नहीं। काम को कोई हमें पूछे नहीं पूछे, कोई हमें इज़्ज़त दे नहीं दे, कोई इकराम करे नहीं करे, हमें खालिस अल्लाह के लिए काम करें।
हमें अल्लाह से अजर लेना है, मखलूक से कुछ नहीं लेना। အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့လူတွေကတာဝန်တွေမပေးဘူးအမေရိကကျွန်တော်တို့အရေးမပေးဘူးဗယံတာဝန်လည်းမပေးဘူးအမေအဖြစ်လည်းမခံအပ်ဘူးကျွန်တော်လုံးဝအတိမမပြုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်ကအလုပ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအများနဲ့ပါဝင်နေရမှာဖြစ်အဲ့ဒီသူကမုခလစ်အလားအတွက်အလုပ်တဲ့သူဖြစ်ဟာငါ့အမေဘာကြောင့်မခံတယ်လဲငါ့ဘာကြောင့်ဗယံတာဝန်မပေးတယ်လဲငါ့ဘာကြောင့် izzat မပေးတယ်လဲအဲ့ဒီအချက်တွေအရှိမထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ class ကပျောက်ပြီးတော့သူကအလားအတွက်လုပ်တဲ့သူမဟုတ်တော့အဲ့တော့အချိန်ဒီတိုင်းမှာအလားအတွက်လုပ်တဲ့သူကဘာလို့လဲသူ့တာဝန်မပေးရင်လည်းသူလုပ်မယ်အမေမခိုင်းရင်လည်းလုပ်မယ်သူ့ izzat မပေးရင်လည်းလုပ်မယ်အမြဲတမ်းသူကအလုပ်ထဲမှာပါဝင်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသူက class function ဖြစ်တယ် class ကမှာဖြစ်ပါ अमली मश्क इखलास की इस तरह करना है कि हर अमल के अंदर में 3 मरतबा अपनी नीयत को चेक करना है। 3 मरतबा हर अमल में अपनी नीयत को टटोलना है। सबसे पहले अमल करने से पहले कि ये अमल मैं किसके लिए करने जा रहा हूँ। दूसरा, अमल करने के दौरान दरमियान में अमल के कि ये अमल मैं किसके लिए कर रहा हूँ। और तीसरा, अमल करने के बाद कि ये अमल मैंने किसके लिए किया है। अगर अल्लाह के लिए हुआ है, दिल कहता है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है, अल्लाह का एहसान है। और अगर नीयत में कुछ ख़राबी है, गड़बड़ है, तो तौबा है, इस्तिग़फ़ार है। ये अमली मश्क है एक बात। दूसरी बात, रोज़ाना एक काम ऐसा ज़रूर करना है जो मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान छुपा हुआ। अमली मश्क की इखलास के अमली मश्क में रोज़ाना एक काम ऐसा ज़रूर करना जो मेरे और अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता हो। ऐसा नेक काम छुप कर ज़रूर करना, ये इखलास की अमली मश्क है। အဲ့တော့ ikhlas နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လို match လုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအမလ်တစ်ခုမလုပ်ခင်သူ့ရဲ့ niyat ကိုစမ်းစစ်ရအမလ်လုံးနေတဲ့ဒေါရန်မှာအမလ်လုံးနေစဉ်တဝက်တစ်ပြက်မှာလည်းသူ့ရဲ့ niyat ကိုစမ်းစစ်ရအမလ်လုံးလို့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာလည်းသူ့ရဲ့ niyat ကိုစမ်းစစ်ရ niyat ကို၃ချိန်၃ကစမ်းစစ်ရပထမဆုံး niyat ကိုစမ်းစစ်လိုက်တယ်ငါဘာကြောင့်ဒီအမလ်ကိုအခုလုပ်ဖို့သွားနေတယ်လေအလ္လာဟ်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်ကိုရှုကူလုပ်ရအကဲငါဒီဟာတေပေါ်ကြောကြားမှုတစ်ခုခုရေရပြသမှုပါနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် istighfar တော့ပါလို့ရအဲ့လိုပဲအလုံးလုံးနေတဲ့တန်းလန်းမှာလည်းတဝက်တစ်ပြက်မှာလည်းပြန်ပြီးတော့ငါအခုဘာကြောင့်လုံနေတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားပြန်ပြီးတော့ကိုယ့် niyat ကိုစမ်းစစ်ရအဲ့ဒီချိန်မှာငါအလ္လာဟ်အတွက်လုပ်တာဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်ကိုရှုကူလုပ်ရမယ်အကဲငါအခုချိန်မှာလူတွေအထင်ကြီးမှုဘက်ကိုရောက်နေတဲ့အာယုံရောက်တယ်ဆိုရင်ချက်ချင်း istighfar တော့ပါလို့ရအဲ့လိုပဲဒီအမလ်ပြီးသွားတဲ့ချိန်မှာလည်းငါဒီအမလ်တော့လုပ်ပြီးသွားပြီငါဘာကြောင့်လုပ်လိုက်တယ်လဲကိုယ့်ရဲ့ niyat ကိုစမ်းစစ်ရသူ့ရဲ့ထဲမှာရိယာပါနေပဲဆိုလို့ရှိရင် istighfar တော်ပါလုပ်မယ်အလ္လာဟ်အတွက်လုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကရှုကူလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ပုံစံတစ်ခုကတော့ဗာလဲ ikhlas နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဲပါတယ် दिन में रोज़ाना एक अमल ऐसा ज़रूर करना နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲအလ္လာဟ်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့နှစ်ယောက်ပဲတည်တဲ့အမလ်တစ်ခုဘယ်သူမှမသိပဲနဲ့ဘယ်သူမှမသိတရားပဲနဲ့ကိုယ်နဲ့အလ္လာဟ်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းတည်တဲ့အမလ်တစ်ခုကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ ikhlas ကိုmatch လုပ်ရမှာဖြစ်တယ် जैसे मिसाल के तौर पर हम टॉयलेट के अंदर गए और देखा कि किसी ने टॉयलेट पूरी साफ़ नहीं किया, तो हमारे दिल में बात है कोई देख तो नहीं रहा, पानी निकाले और हमने अपने हाथ से बहा दिए और दिल में नियत के लिए अल्लाह तेरे लिए किया। खिदमत वाले साथी रात में थक गए खिदमत करते करते, बर्तन छोड़ दिए धोले नहीं, मेरी तहज्जुद में आँख खुली देखा बर्तन पड़े सब सो रहे, मैंने सारा बर्तन धो दिया किसी को मालूम नहीं पड़ा। ये एक मिसाल। किसी बुजुर्ग, किसी बूढ़ा, किसी बीमार की इसने कपड़ा भिगो के धो के रखा, मैं तहज्जुद में उठा देखा यार किसी कपड़ा भिगाए और बुजुर्ग है कि साथी है कमज़ोर, उठा मैंने रात में कपड़ा धो के फैला दिया, किसी को नहीं मालूम अल्लाह और मेरे ला, और सुबह इसका इजहार भी नहीं करना। ये अमली मश्क की अलामत। အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်နဲ့အလ္လာဟ်နဲ့ကြားမှာဘယ်သူမှမသိပဲနဲ့ပြုလုပ်လို့တဲ့အမလ်ကဘယ်လိုအမလ်မျိုးဖြစ်ရမလဲဆိုရင်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အိမ်သားတွေကိုသွားတယ်အိမ်သားထဲမှာမစင်းနေရပွားမစင်းနေရဒီကမတတ်မရှင်ပြည့်နေအဲ့ချိန်မှာအိမ်သားထဲမှာဘယ်သူမှမသိဘူးအလ္လာဟ်ပဲသိမယ်ကိုကအဲ့ဒီအမလ်ကိုအိမ်သားတစ်ခုလုံးပြောင်းစင်သွားအောင်တန်ရှင်းရေးလုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကိုကအလ္လာဟ်စီရဲ့ဒီအဂျရကိုမျှော်လင့်လဲယာအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်နှစ်သက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအမလ်ကိုလုပ်လိုက်အဲ့လိုဘယ်သူမှမသိအောင်လုပ်တဲ့အမလ်ဖြစ်ရနောက်တော့ပုံစံတစ်ခုကပါလဲကျွန်တော်ညတာကျိုးချိန်မှာနိုးတဲ့ချိန်မှာကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ခစ်မတ်တာဝန်ကြတဲ့စာတီတွေကဗကန်တွေခွက်တွေမဆေးပဲနဲ့အိပ်ပျော်သွားကြပြီးပြင်ပန်းပြီးတော့အဲ့ဒါဘယ်သူမှမသိအောင်ဒီအုတ်ခွက်ဗကန်တွေကိုဆေးပြီးထားလိုက်မနေ့မိုးလေးနဲ့ကမှဆေးပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူဆေးသွားတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှသိမှာမဟုတ်အဲ့လိုပဲဂျမားထဲမှာပါတဲ့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့သူတွေရှိတယ်ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့သူတွေရှိတယ်သူတို့အင်ဂျီကိုစားတယ်သူတို့ရှော်မဝတ်နိုင်ဘူးည
ညမှာထားပြီးတော့မလုပ်လိုက်နဲ့သူတို့အင်ကြီးကိုစားလေးကိုယူပြီးတော့တေးကြလျှော်ဖို့ပြီးတော့လာနာလိုက်မနေ့မိုးလေးနဲ့ချိန်မှာဘယ်သူမှမသိလိုက်ဘူးဒီညဒီအင်ကြီးဘယ်သူလျှော်ပေးလိုက်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအလာနဲ့ကိုနဲ့ပဲတီးတဲ့အမတ်တစ်ခုကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်ပြီးတော့ဒါအမလီမက်ဖြစ်တဲ့ इखलास နဲ့ပတ်သက် और फिर दुआ के रास्ते से अल्लाह से रो रो कर इखलास मांगना है। अल्लाह वाले कहते हैं ये सिफ़ात आती बहुत ताख़ीर से है, बहुत मुश्किल से है और बहुत जल्दी सीने से चली जाती है, इससे अल्लाह से बहुत मांगना। အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တတိယချက်ကပါလေအလ္လာဟ်စီမှာကျွန်တော်တို့အာဂျီဇီနဲ့အလ္လာဟ်စီမှာဒူအာတောင်းရမှာဖြစ်ဒီကလတ်ကအင်လာမပဲမြန်ဆန်တဲ့အချိန်နဲ့ပျောက်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကလတ်မပျောက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းအလ္လာဟ်စီမှာဒူအာတောင်းနေရမယ်ဒီကလတ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းရှိနေဖို့အတွက်အလ္လာဟ်စီမှာဒူအာတောင်းရမှာဖြစ်တယ် करेंगे इंशाअल्लाह। अब हमें कैसे मालूम पड़े कि हमारे अंदर इखलास है नहीं, और मैं इखलास का इखलास ये है, इखलास की हकीकत ये है कि हम लोग इखलास के दिखलावे से बच जाए। यानी एक तो ये है कि मैंने काम अल्लाह के लिए किया और ये बात मैं सबको बतलाऊं कि भाई मैं तो अल्लाह के लिए काम करता हूँ, ये इससे भी बचना है। क्यों? क्योंकि जिसके लिए काम किया वो जानता है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो जानता है। तो इखलास के दिखलावे से जो बच गया वरना उसके अंदर इखलास आ गया। भाई मैं अल्लाह के लिए काम कर रहा हूँ तो अल्लाह को मालूम है, दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं, पर मैं अल्लाह के लिए काम में लगे रहना है, चाहे कोई तारीफ़ करे चाहे कोई बुराई करे, हर हाल में अल्लाह का काम करना है। အဲ့တော့လူတယောက်ကသူ့ရဲ့ဇင်ဒဂီမှာသူ့ချီမှာ इखलास ဟကီကတ်ရပြီမရဘူးဆိုတာဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်မလဲသူက इखलास အလ္လာဟ်အတွက်အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးသွားရင်သူကလည်းသူအေးစစ်စစ်တကူတဲ့ငြိမ်နေလိုက်အဲ့လိုမငြိမ်သေးဘဲနဲ့ငါအလ္လာဟ်အတွက်လုပ်တာပါလို့လူတွေကိုလိုက်ပြောနေသေးကာလပတ်လုံးသူ့ချီမှာ इखलास ရဲ့ဟကီကတ်မရဘူးသူကဘယ်ချိန်မှာ इखलास ရဲ့ဟကီကတ်ကြလာမလဲအလ္လာဟ်အတွက်အလုပ်တွေကိုလုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအကြောင်းဘယ်သူမှလည်းသူပြောဆိုခြင်းမရှိပဲနဲ့သူကသူပဲမျိုးသိပ်ပြီးတော့တကူတဲ့ပဲအဲ့ဒီပုံမှာနေတဲ့သူကအဲ့ဒါ इखलास ကြလာတဲ့သူဖြစ်တယ် इखलास အတွက်အလ္လာဟ်အတွက်အလုပ်လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီ इखलास နဲ့အလ္လာဟ်အတွက်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဘယ်သူမှလည်းမပြောဘူးသူအလ္လာဟ်စီရပဲဒီအဂျန်ကိုမျှော်လင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်ရှင်ကသူ့ इखलास ရဲ့ယရနာကနေပြီးတော့သူ့သုံးမျိုးပေးထားတော့ဖြစ်တယ် करेंगे वे कोशिश मेहनत इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक कहने सुनने पर अमल की तौफीक अता फरमाए। အလ္လာဟ်ရှင်ပြောတာဆိုတာလည်းပို့ပြီးတော့အမှလုံးနိုင်တဲ့ topic ချင်းတယ် या मेरे अल्लाह मदद कर